Good morning, everyone. So, this is the last topic of this chapter. Today, we are going to finish this, and the last topic is operating system. आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अच्छे से समझेंगे. अभी पिछले लेक्चर तक हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर and development tools. So, operating system is one of the important system software, and it is not only one of the important software, but it is the most important software. If it is this much important, so we have to know a lot about it. So without any delay, let's start. And in this chapter, we are going to cover the operating systems details. That is, what is operating system, operating system user interface, and some major functions of the operating system. That is process management, memory management, file management, and device management. So let's start. The operating system. Okay, an operating system or OS can be considered to be a resource manager. All the components, all the physical components, and the softwares, whether it is application or system software, all are called basically the resource, because they are used somewhere for the users, or for the users to get work done. कहीं न कहीं all the hardwares and all the softwares users को work complete करने के लिए help करते हैं. So all these are the resources, all the physical components, printer, memory, and memory में primary memory, secondary memory, CPU, control unit, all things, and all other softwares like Microsoft Office, PDF, VLC, whatever is, सब के सब क्या है, रिसोर्स हैं. सबको मैनेज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रिसोर्स मैनेजर, which manage all the resources of the computer. That is, its hardware including CPU, RAM, disk, network, and other input output devices. It also controls various application softwares and device drivers, also manage system security, and handles access by the different users. It is the most important system software. Example of popular operating system are Windows, Linux, Android, Macintosh, and so on. Number of operating systems are there. Basically, operating system is the first software, a very first software that is to be installed in the system. After that, only we can install any other software, or we can connect, or we can get work by any other components. आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है, आपको गेम प्ले करना है, आपको सॉन्ग्स सुनने हैं, तो इन सब के पहले हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर. दिस इज पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर टू फोल्ड. दो हैं, कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर द बिल्डिंग एंड द रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सबसे पहला वर्क क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को रन करना. कौन से सॉफ्टवेयर? Application softwares. When an application program needs to be run, it is the operating system which loads that program into the memory and allocates it to the CPU for execution. आपको VLC यूज करना है. डेस्कटॉप पे आपको शॉर्टकट मिला, आपने जैसे क्लिक किया तो अभी तक ये इंस्टॉल था, कहाँ पर था? सी ड्राइव में था. लेकिन जैसे आपने क्लिक किया तो क्या हो गया? OS क्या किया? लोड किया. लोड्स VLC into RAM and allocates CPU. CPU देता है ना, और CPU में ही जाके क्या होता है, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर रन करता है. राइट. द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ an operating system is to provide an interface to the user through which the user can interact with the computer. आप क्लिक कैसे करते हो? माउस का यूज करके.
माउस इज अ वे ऑफ इंटरेक्शन विद द सिस्टम। और कीबोर्ड से आपने टैब से यूज करके कैसे भी उस सॉफ्टवेयर तक पहुंच के इंटर करके आप रन करा सकते हैं। सो दिस कीबोर्ड एंड माउस आर द टच स्क्रीन, टच से भी आप कर सकते हो। सो दिस हाउ यू कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम, दिस इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। A user interface is a software component which is a part of the operating system and whose job is to take command or the input from a user for the operating system to process. Okay, so this is the general thing about the operating system. Now some special things. OS interface, सबसे पहले तो OS कैसे कैसे आप interact कर सकते हैं या फिर how the user can operating system can get input from the user, that is the interface. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूजर इंटरफेस, बहुत से हैं। कौन कौन से हैं भाई, देखते हैं। वेरी फर्स्ट वन इज कमांड बेस्ड इंटरफेस। मीन्स इफ यू वांट टू गेट एनी वर्क डन बाय द कंप्यूटर यू हैव टू राइट सम कमांड एंड द कमांड्स कैन बी गिवन बाय यूजिंग द कीबोर्ड ओनली। आपको है और कोई ऑप्शंस नहीं है। Command based interface requires a user to enter the command to perform the different tasks like creating, opening, editing or deleting a file. आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, एक वर्ड फाइल क्रिएट करना है, तो यू हैव टू राइट द कमांड, नॉट माउस बाय क्लिकिंग द माउस, क्लिक 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 क्लिक। द यूजर हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल सच प्रोग्राम्स और द स्पेसिफिक कमांड विच द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट। कौन से कमांड से क्या वर्क होता है, तो यू हैव टू लर्न दैट। The primary input device used by the user for the command-based interface is keyboard, because every command is a combination of some keys and text. Control C, Control V, आप ऐसे कुछ लिखते हैं, इंटर या फिर और भी कोई फंक्शन कीज। बेसिकली कीज, एनी कमांड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम कीज, स्पेशल कीज एंड सम टेक्स्ट, ऐसे हो सकता है। Command based interface is often less interactive and usually allow a user to run single program at a time. क्या होता है ये, why it is less interactive? You have to learn lot. आपको सारे कमांड्स याद होने चाहिए। देन आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है तो यू हैव टू राइट द कमांड। आपको कुछ कॉपी पेस्ट करना है तो यू हैव टू राइट द कमांड। तो इतने कमांड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी लेस इंटरेक्टिव। और क्या इसके साथ फीचर्स हैं, अलाउ ए यूजर टू रन अ सिंगल प्रोग्राम एट ए टाइम, केवल एक ही प्रोग्राम एट ए टाइम रन हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। कुछ एग्जांपल्स हैं, MS DOS एंड यूनिक्स। MS फॉर माइक्रोसॉफ्ट, DOS फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली होता क्या था, इनिशियली जब ये बना था तो ये CD में आता था या फिर उसमें फ्लॉपी डिस्क में आता था, दैट्स व्हाई इट्स नेम वाज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता था, आप ड्राइव में लगा दीजिए और सिस्टम आपको अपने चला दीजिए, रन करता था। और ये बाद में फिर आ गया वो इंस्टॉल करने के लिए भी, लेकिन इनिशियली इट वाज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। Second one is the graphical user interface. Graphical user interface GUI lets user run programs or give instructions to the computer in the form of icon, menus and other visual options. आप माउस लेते हैं, क्लिक क्लिक कर देते हैं, शट डाउन हो जाता है, ऑन करते हैं कोई एप्लीकेशन, क्लोज कर देते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बाय यूजिंग द माउस ओनली। तो ये क्या हो गया, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। Icons usually represent files and programs stored on the computer, and windows represent the running program that the user has launched through the operating system. जो डेस्कटॉप पे आपको आइकन्स दिख रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट हो सकता है, ब्राउजर का हो सकता है, डॉक्यूमेंट का हो सकता है, किसी गेम का हो सकता है, तो वो आइकन्स क्या होते हैं, आइदर दे आर द फाइल्स आर देयर शॉर्टकट ऑफ द प्रोग्राम्स, ये हो सकता है। The input devices used to interact with the GUI commonly include the mouse एंड द कीबोर्ड। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में दोनों हो सकता है, टैब से आप मूव कर सकते हैं कीज को, इंटर से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में दोनों काम करता है, माउस और कीबोर्ड दोनों, लेकिन इन कमांड बेस्ड ओनली कीबोर्ड वर्क। एग्जांपल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विद जीयूआई इंटरफेस इंक्लूड्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट का डॉस क्या था, कमांड बेस्ड, और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज क्या है, ये जीयूआई है। उबंटू, फेडोरा एंड मैसिंटोस
and these are the graphical user interface operating system, are the operating system that provides graphical user interface. Next one is the touch based interface. There are some operating system provide this type of the interface. कौन कौन से हैं? जैसे आपके स्मार्टफोन में कौन सा होता है? एंड्रॉयड. Tablet and PCs allow user to interact with the system simply using the touch input. Using the touch screen, a user provides input to the operating system, which are interpreted by the OS as commands like operating system, like opening an app, closing an app, dialing a number, scrolling across app, etc. Examples of popular operating systems with touch-based interfaces: Android, जो आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड iOS, दैट इज अ टैबलेट. ये एप्पल का iOS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल डिवाइसेज में काम करता है. विंडोज 8.1 एंड 10 ऑल्सो सपोर्ट्स द टच बेस्ड इंटरफेसेज ऑन द टच स्क्रीन डिवाइसेज. कुछ ऐसे लैपटॉप्स हैं जो टच स्क्रीन होते हैं, लेकिन उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेगा? 8.1 एंड 10. अगर उससे लेस होगा, 7 होगा, तो नहीं काम करेगा. वॉइस बेस्ड इंटरफेस. Modern computers have been designed to address the need of the all type of the users, including people with the special needs and the people who want to interact with the computers or the smartphones while doing some other tasks. For users who cannot use the input devices like mouse, keyboard, अगर कोई physically handicapped है, हाथ में problems हैं, तो वो keyboard mouse नहीं use कर सकता. For that type of people, this voice-based interface is useful. And touch screen, modern operating system provide other means of the human computer interactions. Users today can use voice-based command to make the computer work in the desired way. Some operating system कौन से भाई? Some operating systems which provide voice-based control to users include iOS. एप्पल के डिवाइसेज में एक सीरी करके आता है, बेसिकली उसको यूज करके आप वॉइस सर्च कर सकते हैं. एंड्रॉयड में गूगल नाउ और ओके गूगल. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में कार्टाना. ओके, ये कार्टाना विंडोज में आता है और एंड्रॉयड में गूगल नाउ और ओके गूगल, और iOS में सीरी. दीज आर द बेसिकली इंटरफेसेस provide a voice interface. Now gesture based interface. Some smartphones based on the Android and iOS as well as laptops lets user interact with the devices using gestures like waving, tilting, eye motion and shaking. This technology is evolving faster and it has promising potential for the applications in the gaming, medicine and other areas. ऐसे भी हो सकता है, हमारा gesture based interface भी हो सकता है. Functions of the operating system, the most important topic. Some basically the overall function of the operating system is divided into 4 parts. कौन से हैं? Very first one is the process management. Process management. While a computer system is operational, different tasks are the running simultaneously. बहुत से टास्क रन कर सकते हैं, तो ये समझना है कि कैसे वर्क करता है. A program is intended to carry out various tasks. ऐसा हो सकता है, a program is intended to carry out various tasks. A task in execution is known as process. ये समझना है. A task in execution is known as process. Like VLC, Microsoft Office, MS Office, और कुछ भी आप कर सकते हैं. आप एट द सेम टाइम VLC इंस्टॉल है, लेकिन आप रन करा देते हैं जब गाने सुन रहे होते हैं, तो वो ये क्या हो जाता है? प्रोसेस हो जाता है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है, आप पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तब ये रनिंग हो जाता है और उस टाइम पे इसको प्रोसेस बोल सकते हैं. तो एट द सेम टाइम VLC भी चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी चल रहा है, इवन हो सकता है आप नेट भी यूज कर रहे हैं उसी समय, वेब ब्राउजर पर, वेब ब्राउजर कोई भी यूज करके आप, क्योंकि वहां से आप लेके ऑफिस पे पावर पॉइंट बना रहे हैं. नेट से आप रीड करते हैं कुछ, ऑफिस पे पावर पॉइंट बनाते हैं, VLC से सॉन्ग भी सुन रहे हैं एट द सेम टाइम. तो मल्टीपल प्रोसेसेस जब रन कर रहे होते हैं, उनको मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम.
We can activate a system monitor programs that provides information about the process being executed on a computer. In some systems, it can be activated using Control Alt plus Delete. ऐसा भी हो सकता है कि हम प्रोसेस मैनेजर कर सकते हैं ओपन कंट्रोल अल्ट और डिलीट का यूज करके. It is the responsibility of operating system to manage these processes and get multiple tasks completed in minimum time. तो मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ये सब आप काम कर रहे हो, साथ में आप प्रिंट भी दे रहे हो, तो प्रिंटिंग का भी वर्क हो रहा है. As CPU is the main resource of the computer system, its allocation among processes is the most important service of the operating system. आप CPU को ये समझ सकते हैं कि सपोज करो इट इज अ कंप्यूटर लैब एंड एवरी क्लास हैव टू अटेंड द कंप्यूटर लैब. सबको कंप्यूटर लैब में आना है. तो कैसे आना है, हम एक सीक्वेंस बनाते हैं, पहले ये क्लास आएगी, उसके बाद ये आएगी, उसके बाद ये आएगी. ऐसा तो नहीं सबको एक साथ ले आएंगे. एट ए टाइम एक क्लास आएगी. तो ये क्लास कब आएगी, कब जाएगी, कब दूसरी क्लास आएगी. ऐसे ही CPU is a main important resource and every process has to be moved to the CPU for the execution. सबको CPU चाहिए, लेकिन कैसे कौन सा प्रोसेस कब CPU में जाएगा, that is monitored by or managed by the operating system, and this work is called the process management. Hence, process management concerns the management of the multiple processes, allocation of required resources, and exchange of the information among processes. The next important task is the memory management. This one is also very important. Memory management means primary memory and secondary memory. Both memory is managed by this operating system. So very first the memory management, primary memory. A primary memory size is very limited. Very limited means it is even in MB or in GB. और GB में भी जो भी है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी मेमोरी में आता है. ऑपरेटिंग सिस्टम सपोज करिए कि दिस वन पार्ट, इतना पार्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया. दिस इज बेसिकली OS, क्योंकि बूटिंग के टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसी में आ जाएगा रैम में. पहले तो रहता है सेकेंडरी में, लेकिन जब सिस्टम ऑन होता है तो वो रैम में आ जाता है. अब आप कोई एप्लीकेशन रन करते हैं, एप्लीकेशन सपोज करो VLC चला रहे हैं, तो VLC यहाँ पर आ जाएगा, वो भी उसी रैम में ही ले लेगा स्पेस. आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किया, वो इसमें आ गया, MS ऑफिस इसमें आ गया. आपने और कोई प्रिंटर को भी वर्क दे दिया, प्रिंटिंग हो रहा है यहाँ पर, और भी कोई आप वर्क कर रहे हैं तो वो भी आ गया. और नाउ जैसे जैसे ये रैम की साइज फुल होती चलेगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि नाउ रैम इज फुल, जितना भी स्पेस था फुल हो गया. अभी क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस, कोई नेक्स्ट प्रोसेस आने के लिए सोच रहा है कि मुझे भी रैम में जाना है. अब कैसे रैम में आएगा, बिकॉज रैम में तो कोई अभी स्पेस बचा ही नहीं है, राइट. रैम में कोई स्पेस नहीं है. अब क्या करेगा, बट दिस प्रोसेस जो अभी आने की कोशिश कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ रहा है कि दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट वन. तो क्या करेगा, यहाँ से किसी प्रोसेस को बाहर भेजेगा और उस प्रोसेस को अंदर भेजेगा. जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर से उस प्रोसेस को बाहर करेगा और इसको अंदर ले आएगा. ये भी वर्क होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि प्राइमरी मेमोरी को मैनेज करता है. बिकॉज प्राइमरी मेमोरी से ही हमारा कंटेंट कहाँ पर जाना है, तो CPU में. तो किसी को भी CPU में आना है तो मेमोरी से होके ही आना है, और मेमोरी में होने के लिए स्पेस अवेलेबल होना चाहिए. स्पेस होने के लिए क्या है, मैनेजमेंट चाहिए. ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि जो ओल्ड वन प्रोसेस है या फिर वेरी लेस यूज्ड प्रोसेस है, उसको बाहर भेज के नए प्रोसेस को अंदर कर लेगा. दिस इज कॉल्ड अ मेमोरी मैनेजमेंट. ओके. एंड सेकेंडरी मेमोरी में आप कुछ भी रीड राइट ऑपरेशन कर रहे हो, कुछ भी डिलीट कर रहे हो, तो कब कौन सा मेमोरी ब्लॉक फ्री है, कैसे एलोकेट होना है, ऐसे समझिए कि मेमोरी ये है आपका, इसमें बहुत से स्कैटर्ड मेमोरी है. स्कैटर्ड मेमोरी इन द सेंस क्या हो गया, दिस वन इज एलोकेटेड, दिस वन इज एलोकेटेड, दिस वन इज ऑल्सो एलोकेटेड, लेट दिस वन इज एलोकेटेड, बट and this one is also allocated like that. ये भी allocated हो गया, this one is allocated. अभी हमारे पास फ्री है, ये स्पेस फ्री है, ये भी स्पेस फ्री है, ये भी है, ये भी है, और ये भी फ्री है. अगर हम ईच ब्लॉक को 10 MB ले लें, 10 MB, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास अभी फ्री है. तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू 60 MB. ये 60 MB हमारे पास स्पेस हो गया.
बट अगर मुझे एक 50 MB का प्रोसेस यहाँ पर ले आना है, स्टोर करना है, तो नहीं स्टोर हो पाएगा। क्यों? कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं है 50 MB का। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेक दीज कंटिन्यूअस प्रोसेसर्स एलोकेशन। ये जितने भी एलोकेटेड और नॉन एलोकेटेड हैं सबको एक साइड में कर देगा, जिससे कि हमारे कंटिन्यूअस एलोकेशन हमें पूरा 60 MB स्पेस अवेलेबल हो जाए और हम क्या करें, इस 50 MB को इसमें राइट कर सकें। तो दिस इज ऑल्सो मैनेज बाय दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज अंडर मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, द नेक्स्ट वन इज द फाइल मैनेजमेंट। अब यही बात, मेमोरी और फाइल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक ढंग से एक ही टाइप का होता है, क्योंकि फाइल को मेमोरी में स्टोर करना है तो कहाँ पर स्टोर करना है, कहाँ से डिलीट करना है, कैसे क्रिएट होना है, ये सब कुछ आ जाएगा आपका फाइल मैनेजमेंट में। डेटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड एज फाइल इन द सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द क्रिएशन, अपडेशन, डिलीशन एंड प्रोडक्शन ऑफ दीज फाइल्स इन द सेकेंडरी स्टोरेज। आप एक चीज और समझिए, सेकेंडरी स्टोरेज में जो भी कंटेंट आपका स्टोर होता है, लेट इट इज सेकेंडरी स्टोरेज, उसमें बहुत से ब्लॉक्स हैं, आपका टेराबाइट्स में मेमोरी होती है। तो कौन सा कंटेंट कहाँ पर स्टोर किया जाता है उसके लिए एक टेबल होती है। यहाँ पर एक प्रोसेस इतना मेमोरी एलोकेट किया, ये इतना हमने स्पेस दिया, तो यहाँ पर एक टेबल में एक ब्लॉक होगा, कोई प्रोसेस किस मेमोरी लोकेशन पर है उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, इसका क्या होगा, एड्रेस यहाँ आ जाएगा। एक प्रोसेस यहाँ पर स्टोर किया गया है, उसका एड्रेस केवल, मतलब स्टार्टिंग और एंड एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, जब भी कोई प्रोसेस हमें इसमें सर्च करना है तो हम कहाँ सर्च, मेन मेमोरी में नहीं सर्च करेंगे, इस टेबल में सर्च करेंगे। टेबल में सर्च करेंगे हाँ कि ये इस मेमोरी लोकेशन पे क्या है, यहाँ पर क्या है, ये फाइल के नेम होंगे, उनका एड्रेस होगा। यहाँ पर अगर वो फाइल प्रेजेंट है इसका मतलब इस मेमोरी में है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पर फाइल का नेम मिला, यस ये मेमोरी ये है, और कहाँ पर है, इस मेमोरी लोकेशन, वहां से रीड हो जाएगा। बेसिकली दिस इज द इंडेक्स, लाइक आपकी बुक का इंडेक्स जो होता है, आपको अंदर नहीं खोजना है, पहले तो खोजना है इंडेक्स में वो कंटेंट है कि नहीं है, वो चैप्टर है कि नहीं। अगर है तो आप डायरेक्टली वहां पर चले जाएंगे। ये जैसे कोई प्रोसेस यहाँ से डिलीट किया गया तो उसका रिकॉर्ड यहाँ से भी हटा देना है मेमोरी से, नया कोई रिकॉर्ड आया तो उसकी एंट्री यहाँ पर होना है। बेसिकली ये भी मैनेज किया, दिस इज ऑल्सो इन द फाइल और मेमोरी मैनेजमेंट, दोनों में आता है। तो इन दिस वे द फाइल इज मैनेज, रीड और राइट। नेक्स्ट वन इज द डिवाइस मैनेजमेंट। बहुत डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज मेनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड हार्डवेयर कनेक्टेड टू इट। Operating system manage these heterogeneous devices that are interdependent। हर एक डिवाइस अलग है, इंडिपेंडेंट है और डिफरेंट टाइप्स की है। कोई ऑडियो इनपुट ले रहा है, कोई वीडियो में इनपुट ले रहा है, कोई सेंसर है, कोई ह्यूमिडिटी इनपुट ले रहा है, कोई टेक्स्ट इनपुट ले रहा है, कहीं माउस क्लिक हो रहा है। ये अलग अलग टाइप के डिवाइसेस हैं, सबको मैनेज करने का भी काम कौन सा करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। आप की कोई कीबोर्ड की प्रेस करोगे तो उसका सिग्नल अलग हो, माउस की प्रेस करोगे अलग होगा, टच से करोगे तो उसका सिग्नल अलग टाइप का होगा, वॉइस से करोगे उसका सिग्नल अलग टाइप होगा। तो डिफरेंट डिवाइसेज हैं, डिफरेंट टाइप्स के इनपुट दे रहे हैं, और सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम interacts with the device driver and the related software for a particular device. The operating system must also provide the options for configuring a particular device। जब कोई न्यू डिवाइस आप कनेक्ट करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए भी बताता है, आप उसको भी करते हैं। जैसे आप स्पीकर लगाते हो तो उसका वॉल्यूम, बॉस, बेस, वो सारी चीजें आप इससे सेट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, so that it may be used by an end user or the some other devices। just like files, devices also need सिक्योरिटी मेजर्स। आप क्या करते हो, सिक्योरिटी डिवाइस का भी लगा सकते हो और फाइल्स पे भी लगा सकते हो मेजर्स, एंड देयर एक्सेस टू द डिफरेंट डिवाइसेस मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम सो द अथराइज्ड यूजर्स सॉफ्टवेयर एंड अदर हार्डवेयर ओनली। ये हो सकता है कि कौन सी फाइल कौन सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है और कौन से यूजर यूज कर सकता है, ये एक्सेसिबिलिटी आप मैनेज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। हियर इज द समरी। समरी में देख लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं, जो भी अभी चीजें डिस्कस हुआ वही सब होगा, कुछ भी नया चीज ऐसा नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। विल डिस्कस द एक्सरसाइज पार्ट देन। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।